अच्छा, अक्टूबर नवंबर 20 वेरिएंट 22 आ जाए। Aisha worked for several years for a company that repairs mobile cell phones in country Z. She had always wanted to be her own boss and decided to leave her job to set up CC to produce covers for mobile phones. सही है। जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है ये सोल ट्रेडर की तरफ जा रही है, अकेले काम करना चाह रही है, हर ओन बॉस वो बनना चाह रही है। ठीक है। शी वेंट इनटू पार्टनरशिप। अच्छा, सोल ट्रेडर के अंदर नहीं गई भाई, वो चली गई पार्टनरशिप के अंदर। विद हर ब्रदर अरुणा he worked as an operations manager for a company producing children's clothes। अच्छा, अब देखिए मसला क्या है, इस बंदे के साथ इसने पार्टनरशिप कर ली अपने भाई के साथ, लेकिन इस बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मोबाइल फोन का। क्या लिखा हुआ है उसने कि ये चिल्ड्रन के कपड़े बनाता था, ये उस कंपनी में काम करता था। खैर, आगे। The sources of finance for the business were $10,000 of saving from each partner and a bank loan of 10,000। यानी कि 10,000 सेविंग पर बंदा। तो $20,000 जो है वो सेविंग के आ गए, प्लस 10,000 का लोन आ गया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई है? 30,000 की आ गई। आगे। सीसी was also given a government grant to help the new business get started। इसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिली है। सीसी leased a factory, bought some equipment and had to pay some expenses before the business had regular cash inflows। CC's current product CC's current product is a range of standardized phone covers which are sold in the mass market। नॉर्मल कवर बनाती है, जैसे कि मोबाइल के प्रोटेक्टर हो गए, जेली कवर हो गए, वैसे। These are sold using comparative pricing method through mobile phone shops। यानी कि कंपैरेटर से करीब करीब प्राइस लेवल लगती है जो भी इसने रखनी होती है। ठीक है। CC employs 10 skilled production workers who are paid just above legal minimum wage। मिनिमम वेज से इनको थोड़ा सा ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। These workers have been trained how to operate the equipment and work as a team on the production line। During the production process, there is a lot of waste plastic produced, and CC sends this to landfill sites। The business has just completed its second year of trading। कचरा बहुत होता है, गंदगी बहुत होती है, वेस्ट बहुत होता है। अच्छा भाई, सीसी इज अबाउट टू लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड फोन कवर्स। यानी कि बेटा ये मास मार्केट से किस तरफ आने की कोशिश कर रही है? ईस्ट मार्केट की तरफ। It will need to recruit 2 additional production workers। Aruna knows that the marketing mix for this new product may have to be different to the marketing mix used for the standardized product। Basic logical सी बात। The new product will be aimed at a niche market of high income consumers। अमीर लोगों को टारगेट कर रहे हैं भाई, फकीरों को टारगेट नहीं कर रहे, अमीर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 25। इसने दो लोगों के हिसाब से अपनी मार्केट को तोड़ दिया, एक तो इनकम, दूसरा एज। इन दो चीजों के हिसाब से इसने अपनी मार्केट को तोड़ दिया। देयर आर फ्यू अदर कंपैरेटर्स इन दिस मार्केट एट प्रेजेंट। Newspaper article in main news country Z has been in a recession but the economy is now growing rapidly। सही है। रैपिडली एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग। यानी कि बेटा लोगों के पास इनकम गिर रही है, सॉरी इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। लोगों के पास जब पैसे आएंगे तो लोग स्पेंडिंग करेंगे, और स्पेंडिंग करेंगे तो बेटा आयशा और ये अरुणा जो भी है सीसी वाले, इनकी सेल्स भी बढ़ेंगी। ठीक है, आगे आए। With higher incomes, the majority of people now own mobile phone। This makes communication easier। Mobile banking is becoming more popular and it is used by large percentage of the population। Irrelevant सी बात है, मेरे हिसाब से कोई लिंक नहीं बैठता है। तो ये इस तरह के मोबाइल फोन बनाता है भाई, एडवर्टाइजिंग है ये, बोलता है do you want to protect your phone from damage, then buy cover from phone cover from CC। your phone will never be damaged if you use one of our high quality covers। we offer a range of standardized covers at competitive prices। the CC range has many different colors and designs, so you will stand out from the crowd। ठीक है। अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी दी हुई है। अब ये समरी देखते साथ ना आपको बिना क्वेश्चन पढ़े कुछ कैलकुलेशंस करनी है। और वो कैलकुलेशंस क्या है? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपके पास, सबसे पहले आप निकाल लें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और इसका फॉर्मूला भी आपने एग्जाम में आंसर में लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू, यानी कि सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो बेटा, 400 ओवर 800
मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना आ गया, 50% आ गया। कैलकुलेटर अलाउ होता है, खुदा के वास्ते लेके जाना। आगे बेटा नेट प्रॉफिट गिवन है, एनपी मार्जिन निकाल लें। एनपी मार्जिन कितना आ रहा है हमारे पास, 150 ओवर 800 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मुझे, कैलकुलेटर हाथ में रखो। अराउंड 17-18% मेरे ख्याल में आएगा, जल्दी बताओ। अरे यार 18 समथिंग, क्या 18 समथिंग क्या, 18.75। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया, 18.75%। अच्छा, आपके पास करंट एसेट है, आपके पास करंट लायबिलिटी है, तो बेटा आप करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितने हैं, 20,000, करंट लायबिलिटी कितनी है, 15,000। तो कितना आ गया आपके पास, 20 डिवाइड बाय 15, 1.3:1, जो कि बहुत खराब है। मैंने आपको क्या रेंज बताई हुई है, 1.5 से लेकर 2 के बीच में होना चाहिए ये, और ये कितना आ रहा है, 1.3। अच्छा बेटा आपके पास इन्वेंट्री अलग से दी हुई है, यानी कि आपको एसेट टेस्ट रेशियो भी निकालना पड़ेगा। एसेट टेस्ट क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटी। कितना है जी, 20,000 माइनस 5,000 ओवर 15,000। आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1:1, जो कि कदरे बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको इसकी रेंज क्या बताई हुई है, 1 से लेके 1.5 होनी चाहिए, कदरे बेहतर। ठीक है, तो ये चीजें आपने पहले से करके रखनी है अपने क्वेश्चन के अंदर। अब पढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई फाइनेंस इज नीडेड फॉर सीसी। यार ये तो बड़ा ही कोई बच्चों वाला सवाल, जाहिर सी बात है आप जब स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आप जब स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो बेटा आपको फाइनेंस तो चाहिए होगा ना, यानी कि आप, जाहिर सी बात है आपको इक्विपमेंट परचेज करना है, आपको एडवर्टाइजिंग करवानी है, आपको लेबर की तनख्वाह यानी कि वेजेस देनी है, आपको 50 चीजें देखनी है बेटा, आपको बिजनेस के अंदर सफिशिएंट कैश लेके आना है। तो ये चीजें आप उसको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है रीजन टू, आप कह सकते हैं टू बाय मशीन। अब इसको लिंक करना है, देखें खुद उसने बताया कि सीसी जो है वो कस्टमाइज्ड वो बना रही है, कस्टमाइज्ड फोन कवर बनाने जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसको मशीन यूज करनी पड़ेगी। या अगर वो फोन कवर वैसे भी बनाती है तो हैंडमेड तो नहीं बनते ना फोन कवर्स, वो तो एक डाई बनती है प्लास्टिक की, उस हिसाब से वो काम कर रहा होता है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री मशीनरी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आप तीसरा रीजन कह सकते हैं टू बाय रॉ मटेरियल। ये वाला केस आप उसको बता सकते हैं कि भाई रॉ मटेरियल बाय करना है, जाहिर सी बात है जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। समझे बात को, इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा भाई, explain the benefits and limitations of the following two ways to achieve quality production. Which way should CC use? Justify your answer. बेटा यहाँ पे आपने क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या बोलता है कि जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसके तैयार होने के एंड पे उसको चेक किया जाता है, चेक एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन
प्रोसेस। ठीक है, इसके सारे एडवांटेजेस आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं कि कस्टमर तक खराब चीज नहीं पहुंचेगी, जब उस तक खराब चीज नहीं पहुंचेगी तो जी हमारा कस्टमर खुश रहेगा, लॉयल्टी हमारी बनी रहेगी। इसके अलावा एक और एडवांटेज मैंने लिखा था, लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, और आप ऑलरेडी 10 बंदों को एम्प्लॉय करके बैठे में तो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज बेटा हमें ये तो नहीं पता ना कि प्रॉब्लम आई किधर। उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है कि यार जब हमारे पास पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया और वो गलत बन गया तो कितनी कॉस्ट है हमारे बिजनेस के लिए। तो मसला बढ़ सकता है ना, कॉस्ट बढ़ सकती है, हाई कॉस्ट। हमारे फोन कवर एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी और रिटर्न हमें कम मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में ना प्रॉपर तरीके से कर पाए, फिर प्रॉब्लम को जब हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमें पता किस तरह चलेगा कि यार इसको खत्म किस तरह करें। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है ना बेटा, इसको थ्रू आउट चेक किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के, थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, अब इसके भी बेनिफिट्स आपके पास नोट्स में गिवन है भाई। आपके पास कॉस्ट कम होगी थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब आप लेके जा रहे हैं आपके पास कॉस्ट कम होगी, आपकी वेस्टेज कम होगी, स्मूथ काम होता रहेगा। सही है, स्मूथ ऑपरेशंस, लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं कि यार ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। सही है, एक्सपेंसिव होता है, ये चीज आप उसके अंदर बताएंगे। ठीक है, वर्कर्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि वो कितने अच्छे तरीके से पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। रिकमेंडेशन में मैं आपकी जगह होता तो मैं बोलता कि यार क्वालिटी अश्योरेंस इज बेटर देन क्वालिटी कंट्रोल। वजह ये है कि यहाँ से मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यार कहाँ कौन सा ऐसा स्टेप था जहाँ पे मेरी जो कवर है वो सही नहीं बन पा रहे, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं जब उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा तो आगे जाके मेरे पास प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से क्वालिटी एश्योरेंस इज बेटर देन क्वालिटी कंट्रोल। कौन सा वाला बेटा समझ नहीं आ रहा, क्वालिटी दो बताओ। बेटा आपने ये चैप्टर रिवाइज किया हुआ है? आपको पता है कि क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी अश्योरेंस क्या होते हैं, चेक्स? जरा माइक खोल के बताना साइम। सर क्वालिटी, जी सर, वो क्वालिटी ये होता है कि मतलब सर एक दफा सवाल रिपीट करिएगा, मैं आपको सारा आंसर बता दूंगा। जरा आवाज एक दफा सवाल, क्या कह रहे हैं? सर एक दफा सवाल रीड करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बस इन दोनों का डिफरेंस बता दो, क्वालिटी कंट्रोल और अश्योरेंस। क्वालिटी सर क्वालिटी कंट्रोल होती है कि जो मतलब क्वालिटी मतलब अगर मेरी प्रोडक्शन की क्वालिटी सही नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्वालिटी कंट्रोल वो होती है सर जिसमें मतलब क्या कहते हैं, जिससे क्वालिटी कंट्रोल रहती है। हम्म। और इंश्योरेंस वो होती है मतलब कि ये कि देखना कि इसका मेरा प्रोडक्ट सही है या नहीं। बेटा आपने एक ही चीज को दो अलग अलग स्टेटमेंट में बोल दिया है और दोनों बातें गलत बोली है। अच्छा। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है क्वालिटी को कंट्रोल करना। ये आपने वो बात की है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स होती है। बेटा इनका कॉन्सेप्ट है ना क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि भाई ये मोबाइल है, ठीक है, ये तैयार हो गया। अब ये तैयार हो गया ना तो मैं इसको चेक करूंगा। ये जब मैं बिल्कुल प्रोडक्शन तैयार हो जाता है उसके बाद जब मैं चेक करता हूँ ना, उसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। जब वो काम तैयार हो जाता है उसके बाद जब मैं चेक करता हूँ उसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको हर स्टेप पे चेक कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसकी स्क्रीन चेक कर रहा हूँ, इसका मैं अंदर का सॉफ्टवेयर चेक कर रहा हूँ, कैमरा चेक कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा हूँ, हर स्टेप के बाद जब मैं चेक करता हूँ उसे कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। समझ में आई बात? जी सर। ये होती है क्वालिटी एश्योरेंस। आपको याद ही नहीं है, डेफिनेशन गलत कह रहे हो आप। इसको रिवाइज करना चैप्टर को बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। Explain two possible reasons why Aisha set up CC as a business partnership. बेटा चैप्टर 4 आपके पास नोट्स में है। चैप्टर 4 के अंदर पार्टनरशिप के आपके पास प्रॉपर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर तो उसने एडवांटेज ही पूछे हुए। आपको मैं बहुत से रीजन बता सकता हूँ। भाई कैपिटल बढ़ेगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पूरा यहाँ तक फिल करें, समझे? इसको सिर्फ इतना लिखना है। ये देखें, बस इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन यहाँ पे करना है आपने, समझे बात को? इसको बस इतना बताना है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माइक सर एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी शेयर्ड, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको। जी अब बोले साइन। सर वो मैं ये कह रहा था कि कैपिटल मतलब अगर इंक्रीज होगा तो एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बताना है कि वो मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा, ये वगैरह बताना है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैपिटल शेयर हो रहा है। अब ए और इसका ब्रदर दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जी। ठीक है, अब इससे बिजनेस को क्या फायदा है? इससे बिजनेस को ये फायदा है कि वो नई मशीन्स लेके आ सकता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, वो अपना आउटपुट बढ़ा सकता है, वो अपना वो रॉ मटेरियल अच्छा लेके आ सकता है, बेटर रॉ मटेरियल। उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, और जब उसकी क्वालिटी बढ़ेगी तो उसकी सेल्स भी बढ़ेंगी। ठीक है, ये बातें इस तरीके से जाना होता है। अच्छा सही। सही है, जी। चेन बनाओ और बेटा। सर वो ये भी तो एक और वो भी तो बता सकते हैं कि मतलब अलग अलग आइडियाज होंगे, मतलब दो हाँ दिमाग है तो हाँ, मतलब फिर दो बिल्कुल न्यू आइडिया। बिल्कुल सही है। सही। अब और सर इसको इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे न्यू आइडियाज को, मतलब कि न्यू आइडियाज को हाँ हाँ कर रहा हूँ बेटा, सबर तो कर, सांस तो ले ले थोड़ा सा। माइक बंद करो अपना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी शेयर्ड, अब ये वाली बात चल रही है ना। अब देखें, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात आएंगी तो उससे क्या होगा कि हर बंदा वो काम करेगा जिसमें वो स्पेशलाइज है। अब जैसे केस में लिखा हुआ था कि आयशा ऑलरेडी केस मोबाइल फोन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है ना। तो जब आप मोबाइल फोन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं तो जाहिर सी बात है न्यू आइडियाज तो आयशा ही लेके आएगी। ठीक है, उसको मार्केट का अंदाजा है, तो वो काम करेंगे जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं। अच्छा, उससे क्या होगा कि उससे आपके बिजनेस की मिस्टेक्स कम होंगी। मिस्टेक्स कम होंगी तो बेटा आपकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ेगा। सही है, ये चीजें आप बताओगे। अच्छा, न्यू आइडियाज से क्या चीजें आएंगी भाई? न्यू आइडियाज आप अपने बिजनेस में लेके आएंगे तो उससे आपके पास क्या फायदा है कि यार आपके पास पोटेंशियल नए कस्टमर्स आएंगे। जब नए कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आप न्यू मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि पहले हम लोग सिर्फ मोबाइल फोन की कवर बनाते थे, आओ अब टैबलेट और इनके भी कवर बनाते हैं। ठीक है, या डिफरेंट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स लेके आते हैं, या फिर नियॉन कलर्स लेके आते हैं। बेटा अपना दिमाग लगाओ, अपने आइडियाज को फेंको। बिजनेस का पेपर है, जनरलाइज्ड पेपर है, ये कोई रटी रटाई बातें नहीं होती इसके अंदर। सही है, स्क्रीनशॉट लें इसका। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, consider the advantages of the following three methods of employee selection. Which method should CC use when recruiting production workers? Justify your answer. बोलता है कि हमें याद है इसने यहाँ पे कहा था कि जब मैं नीश मार्केट में जाऊंगा तो मुझे दो एडिशनल वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे। तो वो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि यार दो एडिशनल वर्कर्स जो आपने हायर करने हैं, तो क्या करें उनसे, किस तरीके से काम ले, किस तरीके से पूछें। सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म का आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है। उससे आप ये कह सकते हैं कि आप वाइड इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं, वाइड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड। सही है, इसके अलावा आप कह सकते हैं जी कि वाइड इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, आप उसके अंदर अपने आइडियाज के बारे में पूछ सकते हैं। न्यू आइडियाज कैन बी आस्क्ड। सही है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा बेटा आप तो रिटन पे ले रहे हो ना, आप रिटन से ये चीज तो जज नहीं कर सकते कि उसको मशीन चलानी आती है कि नहीं आती। ये चीज तो आप जज नहीं कर सकते ना सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म पे ये बात लिख के। इंटरव्यू के एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई? इंटरव्यू के अंदर आप अपने इंटरव्यूई की पर्सनालिटी को देख सकते हैं, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि यार ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आप उसके बात करने का तरीका देख सकते हैं, आप उसकी नॉलेज को जज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और वही वाली बात है कि बेटा सिर्फ वन मीटिंग से आप जज तो नहीं कर सकते ना किसी भी बंदे को, आपको उसने मशीन तो नहीं चला के दिखाई। ये चीज आप उसके अंदर देख सकते हैं। अनफेयर हो सकता है कुछ, क्या पता कोई बंदा प्रेशर में आ जाए ये इंटरव्यू देते हुए। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है भाई? एक सेकंड। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप जो है वो एक टेस्ट देते हैं अपने स्किल्स के बारे में। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हम लोग वर्कर की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, हम वर्कर की नॉलेज को जज कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि यार इस बंदे को आता भी है कि नहीं आता, झूठ तो नहीं बोल रहा। हम लोग उससे फोन कवर्स के बारे में पूछ सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। हम लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, हमें मशीन चला के दिखाओ, या जी हमें बताओ कि आपकी मार्केट के बारे में क्या नॉलेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग तो हर जगह है, टाइम कंज्यूमिंग, और ये कभी कभार कॉस्टली भी होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है। रिकमेंडेशन आपके ऊपर है बेटा, जो आप लोग लिखना चाहें, जो आपकी मर्जी है। बेटा क्लास बस ये पेपर एंड होगा तो क्लास ऑफ हो जाएगी, मेरे ख्याल में 15 मिनट और चलेगी। ठीक है, तो रिकमेंडेशन में आपकी मर्जी है भाई, आप लोग जो लिखना चाहें। लेकिन वही वाली बात है, जिसके फेवर में जा रहे हैं उसका एडवांटेज, और जिसके अगेंस्ट में जा रहे हैं उसका डिसएडवांटेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। सर थोड़ा जूम इन कर दें। सही है। Explain two reasons why a new business is at a greater risk of falling than an established business। बेटा 50 चीजें होती हैं। लैक ऑफ फाइनेंस, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं होते, आप मार्केट ट्रेंड के साथ साथ नहीं रह सकते। आपके पास क्या बोलते हैं, क्या लिखा मैं, लैक ऑफ फाइनेंस। दूसरा आप लिख सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं होती, आपको पता नहीं है मार्केट ट्रेंड किस तरह चल रहे हैं, आप कंपटीटर से लड़ाई नहीं कर सकते। सही है। डिफिकल्टी इन कम्पीटिंग, डिफिकल्टी इन कंपटीशन। ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं नो, या फिर लेस कस्टमर बेस। कस्टमर आपको इतना जानता नहीं होता तो वो आपका ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप लिख सकते हैं इसके अंदर, उनको फिर एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट, consider the following three elements of a suitable marketing mix for CC's new range of personalized mobile phone covers। Justify which element is the most important। यानी कि वो आपसे बोलता है कि यार हम लोग प्राइसिंग को लेके चले, प्रमोशन को लेके चले, या फिर प्लेस को लेके चले। अब आइएगा, इन सब के बारे में आपने अलग अलग बातें लिखी। देखें, अब इसको लिंक करें, क्योंकि ये नीश मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है तो मेरे हिसाब से इसको ज्यादा प्राइस लेवल रखनी चाहिए, यानी कि इसको स्किमिंग मेथड यूज करना चाहिए। स्किमिंग से क्या होता है कि वो अट्रैक्टिव नजर आएगा, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है तो आप उससे ज्यादा प्राइस लेवल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप कॉस्ट प्लस की तरफ जा सकते हैं, यानी कि पहले आप अपनी कॉस्ट को मेजर करो, जितनी कॉस्ट आ रही है उस पर एक फिक्स परसेंटेज लगा दो प्रॉफिट का, और उतना उसको बेचना शुरू कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद जी आप स्कीमिंग की बात करो, फिर आप पेनेट्रेशन की बात करो कि पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल कम रखना। पेनेट्रेशन आप यूज कर लें नॉर्मल कवर्स के लिए, स्कीमिंग आप यूज करें कस्टमाइज्ड कवर्स के लिए। अब मेथड ऑफ प्रमोशन के ऊपर आप बात करते तो यार आप यंगस्टर्स की मैगजीन्स में ये चीजें डालो। ठीक है। आप मोबाइल मार्केट के अंदर अपनी होर्डिंग्स लगाएं। ठीक है। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बात करें, सोशल मीडिया पे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं।
आप बाय वन गेट वन का ऑफर दे दें, सही है, ये चीजों की तरफ आप जाएं। अच्छा भाई, डिस्काउंट्स की बात कर लो आप। अच्छा, अब आप किस किस तरीके से बेच सकते हैं? आप जी ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, क्योंकि आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं ना, और यंगस्टर्स नॉर्मली ऑनलाइन की तरफ ही जाते हैं, ऑनलाइन बाइंग कर रहे होते हैं। जब 18 से 25 साल के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, ऑनलाइन बेचें, ऑनलाइन लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप शॉपिंग मॉल्स में बेचना शुरू कर दो। आप जो मैंने आपसे बात की, मोबाइल मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दें। कोई बंदा जो कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन बेचता हो, उससे एसोसिएशन कर लो, बोलो कि यार पर कवर बेचने पे मैं तुझे इतना परसेंट दे दूंगा, ये चीज भी आप कह सकते हैं। कंक्लूजन अगेन आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। ले ले भाई स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, यूजिंग डेटा इन अपेंडिक्स 3 कैलकुलेट। मैं बेटा पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, उसने आपसे मांगा, तभी मैं कहता हूँ कि ये चीजें जो है ना, ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया करें। ये सारी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले फॉर्मूला बताना है, पहले फॉर्मूला बताना है, प्लस मेथड बताना है, और फिर आंसर बताना है। ठीक है, अगर परसेंटेज में आंसर है तो परसेंटेज डालना भाई लाजमी, रेशो के अंदर आंसर है तो रेशो लाजमी लिखना। समझे बात को? ये पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कंसिडर हाउ चेंजेस in the following three government legal controls could affect CC, which change is likely to have the greatest effect on profit? Justify your answer. अच्छा, अब उसने ग्रेटेस्ट अफेक्ट पूछा हुआ है, उसने आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि यार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे कोई वो नहीं होता, आपको सिर्फ अफेक्ट बताना है। अब आइएगा जरा, इंक्रीज इन मिनिमम वेज। बेटा आप केस याद करो, सीसी ऑलरेडी अपने वर्कर्स को मिनिमम वेज से थोड़े से ज्यादा पैसे देती है, मिनिमम वेज से थोड़े से ज्यादा पैसे देती थी, ऐसा ही है। तो अगर अब गवर्नमेंट मिनिमम वेज बढ़ा देगी, लॉजिकली इसको अपनी वेजेस बढ़ानी पड़ेगी। जब इसकी वेजेस बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है इसके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी। और 10 वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो बेटा 10 वर्करों की कॉस्ट बढ़ गई ना, तो इसके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब आपके पास वेजेस बढ़ेंगी, तो इससे ये हो सकता है कि वर्कर क्या पता मोटिवेटेड हो जाए। जब वो मोटिवेटेड होगा तो वो अपने आउटपुट को बढ़ाएगा, और उससे हो सकता है कि आपकी सेल्स पे अफेक्ट पड़े और आपकी सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, मोर कंट्रोल्स ओवर व्हाट कैन बी स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। बेटा आप उसको ये बताएंगे कि अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे कि उसने बोला कि आप फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जब कंट्रोल लगाती है ना, तो वो ये बोलती है कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अब बेटा बात सुने, इसने यहाँ पे कितनी चौड़ी चौड़ी बातें की हैं। ये देखो, ये देखो, वो कभी खराब नहीं होगा फोन आपका, आप छत से फेंक दो, आप ये कर दो ना, वो कर दो। ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, ये झूठ है। समझे? तो अगर गवर्नमेंट को ये पता चल गया, किसी कस्टमर ने केस कर दिया, तो लाले पड़ जाएंगे बिजनेस के। तो आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, जिससे क्या हो सकता है कि आपके बिजनेस की सेल्स गिर जाए। ठीक है, आपके बिजनेस की सेल्स गिर जाए। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि यार अब वो क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे जो कवर है सबसे मजबूत हैं, कभी खराब नहीं होते। आपको सच बताना पड़ेगा। तो जब आपको सच बताना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपकी सेल्स पे नेगेटिवली इम्पैक्ट आए। नो वेस्ट प्लास्टिक कैन बी सेंट टू लैंडफिल साइट्स। अब इससे बेटा क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से उसको डंप करना पड़ेगा, या फिर उसको आपको रिसाइकल करना पड़ेगा। तो बेटा जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपके पास क्या कहते हैं, आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, आपका एनपी मार्जिन भी आपका कम हो जाएगा। सही है। इसके अलावा आपको जब रिसाइकलिंग की बात आती है, तो आपको वर्कर्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा, जिससे आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी और आपके प्रॉफिट पे कम हो जाएगा। कंक्लूजन, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करेगा ना इसके बिजनेस को, वो ये करेगा। सही है, वो ये इसलिए करेगा क्योंकि लॉजिकली सोचे ना, मिनिमम वेज से मैं थोड़ा सा अगर ऊपर दे दूंगा, तो उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, पहले भी दे रहा था, आप भी दे दूंगा थोड़े से पैसे।
एडवर्टाइजिंग में बंदे को, कस्टमर को खुद भी इतना आइडिया होता है, बेवकूफ नहीं होता कि यार कवर है वो खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं उसको छत से फेंक दूंगा तो वो टूटेगा ही नहीं, तो कभी कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा अफेक्ट ये करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, आपकी प्रॉपर कॉस्ट पे अफेक्ट आ रहा है, आपको रिसाइकल करना पड़ रहा है, आपको एक लॉन्ग टर्म काम करना पड़ रहा है, आपको अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करना पड़ रहा है, तो इससे आपके बिजनेस पे नुकसान आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आयशा क्लियर है? चलें, क्लास ऑफ कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह P1 करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।